تلاوت فرمائی وہ شب معراج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورت کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 27 رجب المرجب کو شب معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن مبارک گھڑیوں میں، نور کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہی تو اس کی کاریگری ہے؟ انسان جب اس کے سب اختیار میں ہے، اس کے سب اختیار میں ہے، وہ بڑا زبردست ہے، طاقت والا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی طاقت والا ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اس کی ذات ہی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں، وہ اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں تو وہ خسارے میں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا؟ بے شک سبحان اللہ۔ کہ اپنے پاس بلایا، سبحان اللہ، اور پھر کیا کہا؟ اور قریب آ جا میرے اور قریب آ جا۔ اللہ کے کیا کہنا؟ یہ صرف اتنا، یہ جو ہے نا ابرو ہے، ان کا جو فاصلہ ہے صرف اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت جب آپ تشریف لے گئے تو یہ کائنات کی تمام چیز ساقط ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ راتوں رات سارے سلسلے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیے، لیکن وہ جو وقت تھا کتنا تھم گیا، کتنا ہوگا یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی تو قادر ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کی ذات پہ ایمان لانا ہی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ایمان والا تب ہی بنتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے جب اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ ایمان والا بن کے پھر وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صلہ رحمی اختیار کرتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام ملنے والوں کے لیے صلہ رحمی اختیار کرتا ہے۔ اور جب انسان صلہ رحمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ یہ عمل ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ ہمارے قبلہ رانا صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ وہ بڑا خوبصورت اہتمام کرتے ہیں محفل پاک کا۔ رانا صاحب ایک میں درخواست کروں گا، کیونکہ جو کچھ اب ہم سیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ہر اس عمل سے بچا جائے جس میں ریاکاری، منافقت کا سلسلہ ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہم محافل کا اہتمام یقیناً بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ایک ہم میں پتہ نہیں رواج بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑے سے بڑا نعت خوان آئے، لیکن اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں، آنا چاہیے، لیکن ایسے آدمی جو اپنی قیمت لگوا کے آتے ہیں،
जो कहते हो कि इतने पैसे देंगे तो हम आएंगे, उनके साथ कभी भी राब्ता ना कीजिए, उनके साथ कभी भी राब्ता ना कीजिए। अभी आपको हम इस दरूद महल के बच्चे जो हमारे हैं, कभी पैसे का तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि ये जो महफिल है इसमें अगर ये इन बच्चों को ये करेंगे तो फिर ये भी तो उसी तरह ही चले जाएंगे। ऐसे नहीं है इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैं हमेशा जाता हूँ, ना कि ये उलमा इकराम की जिम्मेवारी है कि वो हमें वो सही जो रास्ता है वो दिखाएं कि जब हम इतनी इतनी नोटों की डकियां जब हम इस तरह ऊपर फेंकते हैं तो ये असल में ये हमारी शरीयत इसको इजाजत नहीं देती। अब मैं महफिल पाक है, मैं उस चीज का जिक्र नहीं करता कि ये लोग किन पे पैसे फेंकते हैं, ये खुद ही समझाने वाली बात। और जब भी खिदमत करनी हो तो देखें, खिदमत तो वही है ना कि जो चुपके से, अल्लाह चुपके से। और इसमें रांसम मैं ये भी अर्ज करूंगा कि बास ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, अल्लाह वो उस महफिल में बैठ के थोड़ा सा कम अपने आप को कम तर महसूस करते हैं कि यार हमारे पास नहीं है, तो ये ना महसूस करता हो। तो ये आपने एक वहां पे मिसाल कायम करनी, अपने तमाम दोस्तों को बैठ के मीटिंग करें, उनसे कहें कि भाई ये प्रोग्राम है इस तरह। और फिर मैंने ये भी देखा, हर महफिल में तो नहीं होता लेकिन अमूमन देखा है कि जब नात खान आते हैं ना तो उनके साथ 2-4 बंदे और भी आते हैं। तो जब देखते हैं कि वो और कोई नहीं उठा तो फिर उसके बंदे जो उठ के वो पैसे देने शुरू कर देते हैं और फिर उसको देख के दूसरे भी उठते हैं। ये मामले, ये एक बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से मैं समझता हूँ कि ये भी एक माफी की शक्ल इख्तियार कर रहा है, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये अब कारी साहब ने तिलावत कुरान पाक की, इन्होंने तो कोई ग्रुप नहीं बनाया। हमें फोन आते हैं कि जी आप हमारी पब्लिसिटी करें, आप हमारे साथ ये करें, ये सारा करें। क्या है यार, जब एक ये अल्लाह ताला को जब इंसान याद करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए सबब भी तो पैदा करता है। बेशक बेशक। अब हमने इसको बाकायदा कारोबार का जो कारोबार का सिलसिला बना दिया। ये कारोबार नहीं है, ये तो कारोबार अल्लाह ताला के साथ है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अब हम अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़ के 20-20, 40-40, 50-50 हजार, लाख बल्कि कई लाखों लोग महफिल में उन पे दे देते हैं जो बड़े खूबसूरत लिबास में आके अपना एक वो उनका अंदाज होता है। एक छोटा बच्चा भी खड़ा होके कहता है कि भाई जिन्हें मदीने जाना हाथ खड़ा करो, जे किसी ने हाथ ना खड़ा किया तो मदीने ही नहीं जाना। अल्लाह अकबर, ये इंसान के पास की बात है, वो तो उसके कर्म की बात है। उसने जब किसी को ले जाना है तो उसने फिर ये तो नहीं देखना, उसने तो फिर खुद ही सबब बना देने हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया तो ये ऐसी बहुत ही अजीब सिलसिले हमारे आजकल मामूल में होते हैं। तो हमारा ये यानी हमारा ये फर्ज बनता है कि हर जो हमारे पास कुछ इल्म है वो हम अपने दोस्तों में तकसीम करें और वो आगे फिर उसको लेके चलें। एक पाकीज़ा माहौल के तहत होना है। ये पाकीज़ा माहौल नहीं कि उधर नात पढ़ी जा रही है, उधर लोग उठ के ऐसे ऐसे वो नात की भी समझ नहीं आती, लोग उनको देखने शुरू कर देते हैं। ये अरसा 15-20 साल से ये महफिल पाक जमातुल मुबारक सुभान अल्लाह, इस बात पे गवाह है सब। तो आप भी यहाँ पे एक तो
कोई नजराना नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अगर कोई देने की कोशिश करता है तो उनको ये कहते हैं कि ये अपनी औलाद पे खर्च करें। सबसे बेहतर खर्च ये है कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करें, और उसके बाद अपने करीबी जो अजीज व अकरबा है उनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखिएगा। अब जो रिश्तेदार होते हैं वो ये तो महसूस करते हैं कि यार मैं इसके पास गया मांगने तो वो इनकार ना करते, खाना जरूरत उसको होती है, लेकिन अगर हमें उनकी मजबूरी का पता हो तो फिर हम चुपके से जाके उनकी जो मदद करते हैं ना, तो वो फिर उसके दिल से जो दुआ निकलती है, उसके दिल से जो दुआ निकलती है, क्योंकि वो दुआ जो है उसकी जरूरत पूरी हो गई, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तूने अपने इस बंदे के जरिए मेरी मदद फरमाई। तो जो साहब हैसियत है उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने करीबी रिश्तेदारों को मत भूलिए, अपनी खुशी में भी उनको शरीक रखिए, उनसे मुंह मत मोड़िए, वही हमारी जिंदगी का असासा है। हम बाहर जितनी मर्जी मोहब्बतें बना लें, छोटी सी नाराजगी हो जाए तो वो फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं लो मैंने ये फलां वेले एहसान किया सी, उन्हें मेरे एहसान नहीं बदल देता। वो एहसान करने वाला कौन है? एहसान को अल्लाह ताला की जात करती है, जिसने तुझे एहसानें दी हैं, जिसने तुझे सब कुछ अता फरमाया है। वाह वाह वाह, बेशक। तेरी इसमें कौन सी कारीगरी है? तू शुक्र कर कि उसने तुझे खूबसूरत जिंदगी अता फरमाई, तुझे दुनिया की नेमतों से नवाजा है, तुझे इज्जतें दी हैं, तुझे अकल अता फरमाई, तुझे औलाद अता फरमाई, और तू औलाद को अगर तू औलाद को सही रास्ते पे नहीं लेके जाता तो फिर तेरा कैसे छुटकारा होगा? क्योंकि ये तेरे अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद में लिखा है कि वो माँ बाप जो उसके जिम्मे जो मैंने लगाया है, अगर वो पूरा नहीं करता तो वो जवाबदेह होगा, बेशक वो जवाबदेह। तो ये तालीम और तरबियत जो है हमें अपने घर में अपने घरों से स्टार्ट करनी है, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलना है। अपने अहमद साहब से अर्ज करूँगा कि वो आला हज़रत का कलाम पेश करें 4 अशआर में, उसके बाद फिर इंशाल्लाह